Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 11th, today our topic is the price of flowers, continued a short story by Prabhat Kumar Makhu Padyay. You know, it is a story about a poor English family with a widowed mother, Mrs. Clifford. Mrs. Clifford, her son Frank, and daughter Maggie. The narrator is Mr. Gupta, who tells a lie to cure Mrs. Clifford. Psychologically, Maggie gives a shilling to Mr. Gupta to pay floral tribute to her brother in India, who was killed in a fight at border. Yes, dear students. Today our topic is from. Today our lesson is from page number 124. We had reached. We had reached a narrow doorway. Maggie took a thin latch key out of her pocket and opened the door. She entered and said, "Please come in." We here means the narrator and Maggie. They had reached a narrow doorway. एक तंग रास्ते पे पहुंच गए। हाँ, मैगी ने एक छोट पतली चाबी निकाली, की निकाली अपने जेब से और दरवाजे को खोला। वो दाखिल हुई और मिस्टर गुप्ता को कहा, "प्लीज कम इन." When I was inside, Maggie closed the door. She went to the foot of the stairs and raising her voice a little called, "Mother, where are you?" जब मैं अंदर था, मैगी ने दरवाजा बंद किया और नीचे गई सीढ़ियों से नीचे और अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, अपनी माँ को पुकारा, "Where are you?" तुम कहाँ हो? "I am in the kitchen, child." The answer came from the basement. "Come down." मैं किचन में हूँ बच्ची। आंसर बेसमेंट यानी तहखाने से, अंडरग्राउंड रूम से आया। कम डाउन, नीचे आओ। मैगी लुक्ड एट मी क्वेश्चनिंगली, "डू यू माइंड?" मैगी मुझ पर देखती रही क्वेश्चनिंगली, इन ए क्यूरियस वे। "डू यू माइंड? डू यू बॉदर?" "नॉट इन द लीस्ट कम," आई सेड। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं, आइए। टुगेदर वी डिसेंडेड द स्टेयर्स टू द किचन। साथ साथ हम नीचे आए। डिसेंडेड मीन्स केम डाउन या गॉट डाउन द स्टेयर्स टू द किचन, जो किचन की तरफ थी। मदर सेड मैगी फ्रॉम द डोरवे, "इंडियन जेंटलमैन हैज कम टू सी यू." माँ मैगी ने डोरवे से कहा, "एक हिंदुस्तानी जेंटलमैन आपको देखने आया है." "Where is he?" the old woman asked eagerly. With a smile, I stepped into the kitchen behind Maggie. वो कहाँ है? बूढ़ी औरत ने पूछा impatiently, desiringly, with a smile, एक मुस्कुराहट के साथ। I stepped into the kitchen. It means Mr. Gupta stepped into the kitchen behind Maggie, Maggie के पीछे पीछे। She introduced us, उसने हमको इंट्रोड्यूस किया, मुतारिफ कराया। "This is Mr. Gupta, mother." She said, उसने कहा, "ये मिस्टर गुप्ता है." And Mr. Gupta, "This is my mother." ये मेरी माँ है। You know, these are short sentences in a dialogue. "How do you do?" "How are you?" I said and held out my hand, और मैंने अपना हाथ बाहर निकाला। "Excuse me, my hand," she said, holding them out for me to see. They were covered with flour. "Today is Saturday," she explained. "I am making cakes. People will come to buy them. They will be sold on the streets tonight. This is the way we make our living. Lots of trouble." "Excuse me, my hand," she said. उसने कहा, "माफ करो, मेरे ये हाथ." Holding them out for me, मुझे दूर रखा देखने के लिए। They were covered with flour. वो आटे से ढके हुए थे, यानी उन पे आटा था। "Today Sunday, Saturday, आज सैटरडे है." She explained, उसने एक्सप्लेन किया। I am making cakes. मैं केक्स बना रही हूँ। "People will come to buy them this evening." आज शाम लोग इनको खरीदने आएंगे। "They will be sold on the streets tonight."
इनको गलियों में आज खरीदा जाएगा, ये बेचा जाएगा। दिस इज द वे, इस तरह वी मेक आवर लिंग, हम वी अर्न आवर लिवलीहुड, हम अपना रोजगार कमाते हैं। डैश लॉट्स ऑफ ट्रबल, बहुत से मुश्किलात। Saturday night is the time of festivity in poor neighborhoods. All sorts of things are sold from countless lighted push carts. She explained Saturday night is the time of fest in poor neighborhoods. जो सैटरडे नाइट ये होती है जश्न का दिन, सेलिब्रेशन का दिन, जो गरीब पड़ोस होते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड, हर किस्म की चीज़ें बेची जाती है, उनकी बिक्री की जाती है। फ्रॉम काउंटलेस, काउंटलेस मीन्स नंबरलेस, लाइटेड रोशन कॉट्स, जो कॉट्स पुशड बाय हैंड, या उर्दू में से रेडी, रेडी जिन पर रोशनी लगी होती है, उन पे ये बेचे जाते हैं। Yes, dear students. Yes, dear students, the streets are more crowded than on any other day. Saturday is the day the poor are able to spend a little, for they receive their weekly wages. Yes, dear students, Saturday night the streets are more crowded than on any other day. सनीचर के बगैर की ये सनीचर के बगैर ये स्ट्रीट जो है वो आज यानी सनीचर को ज़्यादा क्राउडेड हो रहे, भीड़ भाड़ वाला होते हैं, बाकी दिनों ये भीड़ भाड़ वाले नहीं होते। सैटरडे इज द डे द पुअर आर एबल टू स्पेंड अ लिटिल, सैटरडे वो दिन है जिस दिन ये गरीब लोग थोड़ा थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। फॉर दे रिसीव देयर वीकली वेजेस, क्योंकि इनको अपने हफ्ते के हफ्तावार वेजेस मिलते हैं। वेजेस मीन्स मजदूरी, सैलरी, अर्निंग्स। इंग्रेडिएंट्स फॉर केक मेकिंग, फ्लोर, yes, flour, sugar, fat, raisins, eggs, and so forth were set out in readiness upon the dresser. Several freshly baked cakes in tins were also there. Yes, dear students. Yes, dear student. Ingredients means अज्जा, जो अज्जा तरकीबी हैं, यानी जिससे ये चीज बनती है। केक बनाने के लिए क्या सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं? एक होता है फ्लोर, आटा, शुगर, खांड या शक्कर, फैट, चर्बी, तेल वगैरह। रेजिन्स हो गए ड्राइड ग्रेप्स, सूखे अंगूर, एग्स, टूल एग्स, अंडे एंड सो फोर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। दे वर सेट आउट इन रेडीनेस अपॉन द ड्रेसर, वो ड्रेसर पर तैयार थे। यू ड्रेसर यू नो इट इज एन अलमीरा विद कंपार्टमेंट्स, शेल्व्स अबव एंड ड्रायर्स बिलो। ये एक अलमारी होती है जिसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसके शेल्फ ऊपर होते हैं और ड्रायर नीचे होते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, सेवरल फ्रेशली बेक्ड केक्स इन टिन्स वर आल्सो देयर, कई ताज़ा ताज़ा बनाए हुए केक भी डब्बों में थे। Sitting in such a poor kitchen will not be very pleasant for you. Will not be pleasant for you, will it? Mrs. Gillyford said. I have almost finished my work. Maggie, take him into the sitting room. I will come in a minute. No, no, I protested. I can sit here well enough. You make delicious cakes, I must say. Mrs. Gillyford thanked me with a smile. Yes, dear students. Sitting in such a room, such a poor kitchen will not be very pleasant for you, will it? Mrs. Gillyford said. Mrs. Gillyford, it means mother. She said. What she said, उसने कहा किसको? मिस्टर गुप्ता को। ऐसे कम किचन में, ऐसे गरीबों के किचन में बैठना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पसंदीदा नहीं होगा। क्या होगा?
I have almost finished my work. मैंने करीब करीब अपना काम मुकम्मल किया है. Maggie, take him into the sitting room. उसको ले जाओ sitting room में. I will come in a minute. मैं 1 मिनट में आऊँगी. No, no, I protested. नहीं नहीं मैंने protest किया. I objected. I disapproved. I can sit here well enough. मैं यहाँ अच्छी तरह बैठ सकता हूँ. You make delicious cakes. I must say, मैं कहता हूँ आप ताज़ा ताज़ा लजीज डिलिशियस मज़ेदार केक बनाते जाओ. मिसिस किलफोर्ड थैंक्ड मी विद ए स्माइल. मिसिस किलफोर्ड ने मेरा शुक्रिया किया एक एक हाँ मुस्कुराहट के साथ. यस डियर स्टूडेंट्स, what kind of a country India is, sir? asked Mrs. Clifford as she resumed her cooking. किस कस्म का मुल्क इंडिया है जनाब? मिसेस क्लिफोर्ड ने पूछा जो ही उसने कुकिंग रिज्यूम की, दोबारा शुरू की. स्टार्टेड अगेन, रिज्यूमड, स्टार्टेड अगेन. आई सेड ए ब्यूटीफुल कंट्री, एक खूब हाँ जी, ए ब्यूटीफुल कंट्री, एक खूबसूरत मुल्क. सेफ टू लिव इन, क्वेश्चन मार्क, क्या ये यहाँ रहना महफूज है? इट इज अ शॉर्ट सेंटेंस. फिर certainly यकीनन, but not cold like this country, it is hot. लेकिन इस मुल्क की तरह सर्द नहीं है. Not cold like this country, इस मुल्क की तरह सर्द नहीं है. This country is hot. Yes dear students, aren't there too many snakes and tigers? Don't they kill people? This sentence is asked by Mrs. Clifford. क्या वहाँ ज़्यादा स्नेक्स और टाइगर्स नहीं है? क्या वो लोगों को नहीं मारते हैं? Don't believe that, I laughed. Mr. Gupta laughed. इस पे यकीन न करो. Snakes and tigers keep in the jungle. Snakes और टाइगर्स वो जंगलों में रहते हैं. They get killed themselves. वो खुद ब खुद मारे जाते हैं. इफ दे कम टू क्लोज टू प्लेसेस वेयर पीपल लिव, अगर वो ज़्यादा करीब आते हैं उन जगहों को जहाँ लोग रहते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फीवर्स, और क्या इंडिया में बुखार होता है लोगों को? व्हाट इज द आंसर? इन सम प्लेस इन इंडिया देयर इज मोर इलनेस देन इन अदर्स. हिंदुस्तान के कुछ जगहों में ज्यादा बीमारी होती है. इलनेस, एलमेंट, डिजीज बनस्बत दूसरे इलाकों के. इट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, ये हर जगह एक जैसा नहीं है. नॉर इज इट द सेम ऑल द राउंड, न ये पूरे साल एक जैसा होता है. ये पूरे साल भी एक जैसा नहीं होता है. पूरे साल एक जैसा नहीं होता है. Yes, dear student, my son is in the Punjab. He is a soldier. What kind of a place is the Punjab? This question is posed by Mrs. Clifford. My son is in the Punjab. मेरा बेटा पंजाब में है. There are two Punjabs, one in India and one in Pakistan. So there is the Punjab. He is a soldier, वो एक सिपाही है. What kind of a place is the Punjab? पंजाब किस किस्म की जगह है? The Punjab is a fine place. There is little fever there. This is the answer given by Mr. Gupta. पंजाब एक नाइस प्लेस है, अच्छी जगह है. वहाँ कम ही फीवर है, वहाँ कम ही बुखार है. I am glad to hear it, Mrs. Clifford said. Mrs. Clifford ने कहा, मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ. Glad means pleased. Opposite is sad, S-A-D, sad. Then there is another glad, G-L-A-D, glad. It means a bright surface of snow or ice. For example, moon glad. हाँ, she was finished with her baking Maggie. She said, take Mr. Gupta upstairs. I will wash my hands and bring tea. She was finished with her baking. उसने बेकरी का काम मुकम्मल किया. उसने मैगी को कहा,
मिस्टर गुप्ता को दूसरी मंजिल में ले जाओ. Upstairs means next story. I will wash my hands and drink tea. मैं हाथ धो के आऊंगी और चाय लाऊंगी. Hope students you also enjoy tea. Maggie showed me the way to their sitting room and I followed. The furniture was cheap and there was not much of it. The carpet was old and torn in places, but everything was extremely clean. Yes, students, Maggie showed me the way to their sitting room and I followed. Maggie ने मुझे रास्ता दिखाया उनके बैठक कमरे में और मैं उसके पीछे पीछे चला. The furniture was cheap. जो फर्नीचर था वहाँ वो थोड़ा सिंपल था. It was not expensive and there was not much of it. ज़्यादा फर्नीचर नहीं था. The carpet was old and torn in places. जो कालीन था नमदा था वो किसी किसी जगह पे वो पुराना था और किसी किसी जगह पे टूटा हुआ था, फटा हुआ था. But everything was extremely clean. लेकिन हर चीज very clean, बहुत ही साफ थी. Mrs. Clifford came in carrying the tea tray a few minutes later. As we drank tea, I talked about India. Mrs. Clifford showed me a photograph of her son. It had been taken before he left. His name was Francis or Frank. Maggie brought out a book of pictures he had sent her for her birthday. There were many pictures of Shimla and the surrounding mountain country. On the inside page was written to Maggie on her birthday from her loving brother Hank. Yes, dear students. Mrs. Clifford came in carrying the tea tray a few minutes later. Mrs. Clifford यानी मदर वो अंदर आई वो लेकर आ रही थी एक मजमा एक ट्रे जिसमें चाय थी चंद मिनट बाद. As we drank tea, जैसे हम चाय पीते गए, I talked about India. मैंने इंडिया के बारे में बात की. Mrs. Clifford showed me a photograph of her son. Mrs. Clifford ने मुझे दिखाया एक फोटोग्राफ अपने बेटे का. It had been taken before he left. ये तस्वीर ले गई थी उससे जब उसका बेटा यहाँ से रुखसत हुआ उससे पहले. His name was Francis or Frank. उसका नाम था Francis or Frank. Maggie brought out a book of pictures. Maggie ने निकाली एक किताब तस्वीरों की जिसको हम एल्बम भी कहेंगे. He had sent her for her birthday. उसने उसको लाया था अपनी बर्थडे के लिए. उसने भेजा था उसको उसकी बर्थडे के लिए यानी बहन की बर्थडे के लिए. There were many pictures of Shimla and the surrounding mountain country. उसमें शिमला आप जानते हैं शिमला जो है हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है. उसमें उसकी बहुत सारी तस्वीरें थी और जो सराउंडिंग माउंटेन कंट्री यानी नेपाल है उसकी भी तस्वीरें थी. On the inside page was written. पेज के अंदर लिखा था क्या टू मैगी को बखदमत मैगी ऑन हर बर्थडे उसके जन्मदिन पर फ्रॉम हर लविंग ब्रदर फ्रैंक उसके प्यारे भाई फ्रैंक से. मैगी said Mrs. Clifford show Mr. Gupta the ring. अब मिसेस क्लिफोर्ड कहते मैगी को मिस्टर गुप्ता को अंगूठी दिखाओ. Has your brother sent you a ring? I asked her. Let me see what kind of a ring it is. क्या आपके भाई ने आपको अंगूठी भेजी है? मैंने पूछा. चलो मैं देखता हूँ ये किस किस्म की अंगूठी है. It is a magic ring. Maggie explained. A yogi gave it to Frank. ये एक जादुई अंगूठी है. मैगी ने वजाहत की एक जोगी ने फ्रैंक को ये दी. Yes, dear student, she brought it and asked, can you see the past and the future in it? उसने ये लाई और पूछा किसको मिस्टर गुप्ता को क्या आप उसमें देख सकते हैं गुजरा हुआ जमाना और आने वाला जमाना. हाँ
योगी क्या कहते हैं, हम पुराने ज़माने को भी देख सकते हैं, गुजरे हुए आने वाले को भी, बट डोंट बिलीव इट, इट इज सुपरस्टिशियस. I had heard a lot about crystal grazing. A crystal was set in the ring. I I took it up and examined it. Mr. Gupta says, I had heard a lot about crystal grazing. मैंने crystal grazing के बारे में बहुत कुछ सुना है. It means forecast future by looking through the crystal. Crystal, you know, it is a transparent mineral. In Urdu it is called गिलोर, कश्मीरी में कहते हैं वाजहुन क्रांत. हाँ, एक क्रिस्टल वाज सेट इन द रिंग, रिंग में एक क्रिस्टल, एक बिलोर फिक्स किया गया था. आई टुक इट अप, मैंने उसे देखा, उठाया, एग्जामाइंड, इसका मायना किया. When Frank set the ring, Mrs. Clifford said, फ्रैंक ने कब अंगूठी भेजी है, मिसेस क्लिफोर्ड ने कहा. ही रोट दैट इफ यू कंसंट्रेट ऑन ए डिफरेंट पर्सन, ऑन ए डिस्टेंट पर्सन, as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. हाँ, उसने चिट्ठी में लिखा, यानी फ्रैंक ने चिट्ठी में लिखा है, अगर आप कंसंट्रेट करोगे, तवज्जो से देखोगे, फोकस करोगे, ऑन ए डिस्टेंट पर्सन, एक दूर दराज शख्स पर, एज यू गेज इनटू इट, जब आप इस अंगूठी में देखोगे, इसके गिलोर में, क्रिस्टल में देखोगे, यू विल बी एबल टू सी हिम, आप उसको देखोगे, एंड व्हाट ही इज डूइंग, वो क्या करता है. Maggie and I have considered upon it again and again, because we have not had any news from Frank for a long time. मैगी और मैंने, यानी मिसेस क्लिफोर्ड ने, कंसंट्रेट किया, यानी थॉट डीपली अपॉन इट, बट we have not found anything, because we have not any news from Frank for a long time. लंबी देर से हमें न्यूज, कोई खबर नहीं है फ्रैंक से या फ्रांसिस से. But we have not been able to see anything. लेकिन हम उसमें से कुछ न देख पाए. Why don't you try? तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो? You are an Indian, तुम इंडियन हो, you may be able to do it. आप इसको देख सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं. I realized that superstition was not confined to India. I did not have the heart to tell the mother and daughter that the ring was nothing much brass with a piece of ordinary glass set up into it. They believed their Frank had sent them a new and miraculous thing from a distant land, from a dream world. How could I shatter their faith? These are words of Mr. Gupta. What he says. Yes, what he says. I realized that I accomplished, मैं जान गया, I became aware that superstition was not confined to India, कि जो तोहम परस्ती है, हाँ, superstition means knowledge not based on reasons, ये हिंदुस्तान तक ही लिमिटेड नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, महदूद नहीं है. I did not have the heart, I did not have the courage, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मदर और डॉटर को बताऊं that the ring was nothing much, ये ज़्यादा अंगूठी कुछ ज़्यादा नहीं है. What was it? It was a brass with a piece of ordinary glass stuck into it. ये क्या था? पीतल, एनालॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, उसका एक टुकड़ा, और इसमें एक क्या था? मामूली गिलास जो था, उसमें ट्रैप किया गया था. They believed their Frank had sent them a new and miraculous thing from a distant land. वो यकीन करते थे कि फ्रांसिस या फ्रैंक ने उनको एक नया और वंडरफुल चीज भेज दिया, एक दूर दराज मुल्क से. फ्रॉम ए ड्रीम वर्ल्ड, एक अजीब गरीब दुनिया से, ख्वाबों की दुनिया से. बट हाउ कुड आई शेटर देयर फेथ?
कैसे मैं उनके यकीन को तोड़ूं. Shatter means break, faith means belief. Urged by Mrs. Clifford and Maggie, I took the ring in my hand and stared at it intensely for a long time. I cannot see anything, I exclaimed at last, giving up. Urged means pressed by, yeah, or insisted by. Mrs. Clifford and her daughter Maggie. I took the ring in my hand. मैंने अंगूठी ले लिया अपने हाथ में. Stared at it intensely for a long time. और घूर घूर से इसको देखा. Deeply, गहराई से, लंबी देर तक. I cannot see anything. मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ. I exclaimed at last. मैंने आखिरकार इंकशाफ किया. Giving up, leaving it. इसको छोड़ दिया. Mother and daughter were disappointed. Mother and daughter, they were foiled, they were frustrated to change the subject. ये टॉपिक, ये मौजू बदलने के लिए I said, here is a violin, ये एक बाजा है. You know a violin is a four-string musical instrument. It is yours, ये तुम्हारी है, isn't it? क्या नहीं है? Maggie. Yes. Mrs. Clifford answered. Miss Clifford ने जवाब दिया. Maggie plays quite well. मैगी खूब अच्छा जानती है. मैगी प्लीज प्ले समथिंग फॉर अस. मैगी मेहरबानी करके कुछ देर के लिए बाजा हमारे लिए बजाओ. ओह मदर, ओह माँ. मैगी लुक्ड एट हर प्रोटेस्टिंग. माँ उसकी तरफ देखती है. प्रोटेस्टिंग विद ऑब्जेक्शन. आई प्लीडेड, आई रिक्वेस्टेड, प्लीज प्ले समथिंग. मेहरबानी करके कुछ बजाओ. क्या कुछ गाओ. I am very fond of the violin. मैं वायलिन यानी बाजे का. fond means शौकीन, इसका बड़ा शौकीन हूँ. I have a sister at home about your age. मेरे घर पे आपकी उम्र की बहन है. She used to play for me. उसकी आदत थी वो मेरे लिए वायलिन बजाती थी. The way I play is not all worth listening to, Maggie said. मेरी ने कहा, जिस तरीके से मैं वायलिन बजाती हूँ वो सुनने के लायक नहीं है. After some persuasion, he played a folk tune. कुछ persuasion के बाद, कुछ motivation के बाद, उसने एक लोक गीत, एक लोक ट्यून बजाया. Then a minor classic, तब एक मुख्तर classic. Classic, you know, it is relating to ancient Greece and Rome. We became good friends. हम गहरे दोस्त बने. 3 months passed. 3 महीने गुजर गए. 3 महीने गुजर गए. But no news had come from her brother. लेकिन उसके भाई से कोई खबर नहीं आई थी. Urged by Mrs. Clifford, Miss Clifford ने प्रेस किया. I went to India House one day and made inquiries. मैं एक दिन इंडिया हाउस गया, इंडियन एम्बेसी गया एक दिन और वहाँ से इंक्वायर किया. इंक्वायर मीन्स सॉट इंफॉर्मेशन हासिल की. I was told that the regiment to which Frank belonged was fighting on the northwest frontier. मुझे बताया गया. रेजिमेंट मीन्स ए यूनिट ऑफ आर्मी. जिसमें फ्रैंक काम कर रहा था वो लड़ रही थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर. मिसेस क्लिफोर्ड became extremely worried when she heard it. मिसेस क्लिफोर्ड बहुत ही फिक्रमंद हुई जब उसने उसके बारे में सुना. One day I received a postcard from Maggie, she wrote. एक दिन मैंने पोस्ट कार्ड हासिल किया मैगी से. She wrote ने इसमें लिखा था. Dear student, see in what way a postcard is written. Because a postcard is an open letter. Anyone can read it. Dear Mr. Gupta, प्यारे Mr. Gupta, my mother is very ill. मेरी माँ बहुत बीमार है. I have not been able to go to work for a week. मैं एक हफ्ते काम पर नहीं जा सकी. We shall be extremely grateful. हम बहुत ममनून रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे. If you take the trouble to come to see us, if you mind to come to us, अगर आप
मुश्किल बर्दाश्त करेंगे हमारे पास आने का। मैगी मैगी, you serious students, the letter is, the postcard is from Maggie, so it is written at the bottom, and it is addressed to Mr. Gupta, so dear Mr. Gupta is at the top, and there are few words or few sentences in the postcard. I had told the family with whom I lived about Maggie and her mother. I spoke of the letter at breakfast. मैंने इस फैमिली को बताया था जिनके साथ मैं रहा करता था, मैगी और उसकी माँ के बारे में। मैंने चिट्ठी के बारे में बताया। ए ब्रेकफास्ट कहाँ, किस वक्त? नाश्ते के वक्त, ब्रेकफास्ट के वक्त। माय होस्टेस सेड, मेरी जो मेज़बान औरत थी, नौकरानी थी, उसने कहा, व्हेन यू गो टेक सम मनी विद यू, जब आप जाओगे कुछ पैसा अपने साथ ले जाना। द गर्ल हैज नॉट बीन एबल टू गो टू वर्क फॉर अ वीक, ये लड़की हफ्ते तक नहीं जा सकी काम के लिए। शी हैज नॉट रिसीव्ड एनी पे, उसने कोई पे हासिल नहीं की, कोई मजदूरी हासिल नहीं की। इट इज प्रोबेबल दैट दे आर हार्ड अप, मुमकिन है, इट इज पॉसिबल, इट इज प्रोबेबल, मुमकिन है, दे आर हार्ड अप, दे आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस, और दे आर शॉर्ट ऑफ मनी, उनको माली तंगी होगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई टुक सम मनी एंड सेट आउट फॉर लैम्बेथ। हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ पैसा लिया एंड स्टार्टेड फॉर लैम्बेथ, और लैम्बेथ के लिए मैं शुरू हो गया, मैं चल पड़ा। लैम्बेथ, यू नो इट इज नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। You, Mr. Gupta, she exclaimed when she saw me. It is so kind of you. Oh, you, तो मिस्टर गुप्ता, she exclaimed, उसने इनकी शॉप किया, when she saw, जब उसने मुझे देखा, it is so kind of आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी। How is your mother, Maggie? I asked her, मैंने पूछा, मैगी माँ की हालत क्या है? She said, she is sleeping now. Her condition is very serious. वो इस वक्त सो रही है, उसकी हालत वेरी क्रिटिकल है, सीरियस है। The doctor said it is aggravated by her anxiety or Frank. डॉक्टर कहते हैं it is aggravated means it is made worse or it is worsened by anxiety, by worry for a friend, जो उसकी परेशानी है फ्रेंड के लिए। There is no news from him yet. उससे अभी कोई खबर नहीं आई है। I have a request to make to you, Mr. Gupta. मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे एक इल्तिजा करने जा रही हूँ। What is it? वो क्या है? मैगी ने कहा, आस्कर कम इनटू द सिटिंग रूम, आई विल टेल यू, शी आंसर्ड। ने जवाब दिया, मेरे सिटिंग रूम में आओ, मैं आपको बताऊंगी। We tiptoed carefully into the sitting room lest the sound of her footsteps should disturb the sick woman. We walked quietly, tiptoed, walked quietly. हम आहिस्ता आहिस्ता चले, यानी उंगलियों के बल चले। किसमें? सिटिंग रूम में, ताकि हमारे कदमों की आवाज़ डिस्टर्ब ना करे, इंटरफेयर ना करे बीमार माँ को। आई टर्नड, मैं मुड़ा। व्हेन आई रीच्ड द सेंटर ऑफ द रूम, जब मैं कमरे के बीच में मिडल में पहुंचा, रिमेन्ड स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़ा रहा। व्हाट इज इट? मैगी ये क्या है? आई रिपीटेड माई क्वेश्चन, मैंने अपना सवाल दोहराया। मैगी गेज्ड अप इनटू माय फेस विद प्लीडिंग आई। हाँ, मैगी ने मेरे चेहरे पर देखा विद अपीलिंग आई। आई वेटेड, मैं इंतजार। Then she covered her face with her hands and wept silently. तब उसने ढक लिया अपने चेहरे को अपने हाथों से और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। Many thoughts ran through my mind. मेरे जहन में बहुत सारे ख्यालात दौड़ने लगे। Dear students, I feel today it is enough.